Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed the concept of accounting from incomplete records. We also discussed how to ascertain profit or loss of such organizations which maintain their accounts by incomplete records using statement of affairs method. Any doubt up to there? No, sir. Okay, good. So now we move on to the next method, which is conversion method. Conversion means conversion into what? Conversion of incomplete records into double entry system. Okay. Suppose, what is the purpose of studying this? Suppose a small trader approaches you almost towards the end of the accounting year and presents you with whatever information he or she has about the business transactions and requests you to make accounts for him as per double entry system. So how do you convert incomplete records into double entry system? That we are going to learn now. लिख लो heading second method, conversion into double entry system method. Conversion method. The first step is prepare opening statement of affairs in order to find out opening capital if opening capital is not given in the question. Statement of affairs method में भी यही था first step, इसमें भी यही है. Written? Yes, sir. Then second step onwards, the steps are different now. Second step is cash book. Prepare cash book to find out opening or closing balance of cash or bank. Sir, written. Third step, prepare total debtors account, bills receivable account, total creditors account and bills payable account. ये चारों अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो इनके अकाउंट्स बनाओ टू फाइंड आउट एनी मिसिंग आइटम्स. कैसे बनाएंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे. Sir, written. Then fourth and the last step in this method is prepare trading account, profit and loss account and closing balance sheet. Prepare a trading and profit and loss account and closing balance sheet. अब इसका नाम बैलेंस शीट होगा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं कहेंगे क्लोजिंग वाली को. Sir, written. ओके, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. कैश बुक तो हमें पता है क्या क्या आइटम्स होती हैं कैश बुक में, कैसे बनती है. डेबिट साइड पे रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स. थर्ड स्टेप ऑनवर्ड्स थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं.
टोटल डेटर्स अकाउंट जब हम बनाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मेट बना लो एक लेजर का 10 लाइंस का, और उस पे हेडिंग लिख लो टोटल डेटर्स अकाउंट, और अंदर से ये सब हेडिंग्स लिख लो सारी। कंटेंट्स अभी डिस्कस करेंगे, हेडिंग सब हेडिंग लिख लो पहले। ओके, टोटल डेटर्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पोस्टिंग आ सकती हैं। इनमें से कुछ हो सकता है क्वेश्चन में दी हूं, और कोई एक जो क्वेश्चन में नहीं दी होगी वो हमारी बैलेंसिंग फिगर वो निकल आएगी, ठीक है। डेबिट साइड पर क्या क्या हो सकता है डेटर्स में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे पहले स्टार डालना है। स्टार क्यों डालना है कि जिन आइटम से पहले आप स्टार लिखवा रहा हूं मैं, उनमें से कोई एक आइटम क्वेश्चन में मिसिंग हो सकती है, बैलेंसिंग फिगर वो निकल आएगी, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो वो निकल आएगा बाकी की चीजें प्लेस करके। स्टार डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो। Sir, written. If we have sold goods on credit, what is the journal entry? Customer account debit to sales account. कस्टमर टू सेल्स या डेटर टू सेल्स, तो उसकी पोस्टिंग डेटर के अकाउंट में कैसे आएगी, टू सेल्स अकाउंट। तो स्टार डाल के लिख लो टू सेल्स अकाउंट, Yes, sir. ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स। Sir, written. If a bill of exchange gets dishonored and the drawer had retained the bill till maturity, what entry do we pass in the books of drawer? Sir, acceptor to bank account. Yes, acceptor या debtor डेबिट टू बैंक टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, रिटेन के केस में, ठीक है। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट उसकी पोस्टिंग आ जाएगी, ब्रैकेट में लिख लो बिल्स डिसऑनर्ड। सर, टू बैंक अकाउंट डिस्काउंट वाले केस में होता है ना? यस, डिस्काउंटिंग Okay, करवाई हुई थी अगर बिल की और वो डिसऑनर हो जाता है तब, वो भी आएगा अभी इसमें आगे। हम वो सारी पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं डेटर से रिलेटेड, जो जो पोस्टिंग हो सकती हैं, जो जो एंट्री हो सकती हैं, ठीक है। अगर कोई चेक किसी कस्टमर से हमें मिला था, डेटर से मिला था, और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तब हम क्या एंट्री करते हैं डिसऑनर के टाइम पे? बैंक अकाउंट। अगेन कस्टमर टू बैंक या फिर डेटर टू बैंक, तो इसलिए नेक्स्ट पोस्टिंग लिख लो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में चेक्स डिसऑनर्ड। ठीक है। अब जो आप पहले कह रहे थे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, उसकी क्या एंट्री होती है ड्रॉअर की बुक्स में? एक्सेप्टर टू बैंक अकाउंट। एक्सेप्टर टू बैंक या डेटर्स टू बैंक, तो इसलिए उसके लिए लिख लो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड। सर, रिटन। ठीक है। अगर हम ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर देता है, तब उसकी बुक्स में क्या एंट्री आती है एंडोर्समेंट की? एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। और जब वो वाला बिल डिसऑनर हो जाता है जो एंडोर्स किया हुआ था, तब क्या एंट्री होती है ड्रॉअर की बुक्स में?
acceptor to endorsee. वेरी गुड। तो एंडोर्सी कौन होता है? क्रेडिटर। तो इसलिए टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में एंडोर्स्ड बिल्स डिसऑनर्ड। Written. Now let's come to the credit side. What all can be there in debtors account on credit side? If we have received an amount from debtors, then what is the journal entry? Bank or cash account debit to debtor. Yes, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख लो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में अमाउंट रिसीव्ड, इससे पहले स्टार लगा लेना। Written. If we have given some discount to a customer, then what is the journal entry for that? Discount allowed account debit to debtor. वेरी गुड। तो इसलिए बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। Written. What is the entry for sales return? Sales return account debit to debtor. Yes, so for that, right, by sales return account. Written. Entry for bad debts. Bad debts account debit to debtor. So debtors के अकाउंट में आ जाएगा by bad debts account. Written. If a bill of exchange is drawn and accepted by the debtor, then what is the entry? Bills receivable account debit to debtor. Or the Yes, acceptor. yes, bills receivable debit to acceptor या to debtor. तो debtors के अकाउंट में by bills receivable account ब्रैकेट में bills received. Or accepted. हाँ, बिल एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड कह सकते हैं या बिल्स रिसीव्ड, ये ड्रॉर की बुक्स में है ना, तो उसके लिए बिल रिसीव्ड है। एक्सेप्टर की बुक्स में बिल एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, और लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टार डाल के। रिटर्न। Yes, sir. ओके, तो ये चार पर्टिकुलर्स से पहले हमने स्टार डाला है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, टू सेल्स, बाय बैंक, क्योंकि ये चार मेन आइटम्स हैं जो डेटर्स के अकाउंट में होती हैं। ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन तो किसी अकाउंट में भी होगा ही, जो जितने भी पर्सनल रियल अकाउंट होंगे। डेटर्स में डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन के अलावा मेन एंट्री किस चीज की होती है? क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट साइड पे मेन एंट्री किसकी होती है? अमाउंट रिसीव्ड की। तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो बैलेंसिंग फिगर वो निकल आएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और लेजर का फॉर्मेट बनाओ ऐसे ही, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, इसमें डेबिट साइड पे अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टार डाल के।
और जब बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब बिल रिसीवेबल मिलता है, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करके भिजवा दिया, फर्स्ट एंट्री जो होती है बिल की, एक्सेप्टेंस। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर। यस, तो उसके लिए यहां पर आ जाएगा टू टोटल डेटर्स अकाउंट, स्टार डाल के ब्रैकेट में बिल्स रिसीव्ड। यही वाला अमाउंट टोटल डेटर्स में इधर क्रेडिट साइड पे था, बाय बिल्स रिसीवेबल। रिटन। नाउ ऑन क्रेडिट साइड, यहां इस पे भी स्टार डाल देना टू टोटल डेटर्स के आगे। अब क्रेडिट साइड पे स्टार डाल के बाय बैंक अकाउंट, जो बिल्स का पैसा मिल गया मैच्योरिटी पे, सो विद इन ब्रैकेट्स बिल्स कलेक्टेड। रिटन। If we get a bill discounted from the bank, what is the journal entry? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड। तो उसके लिए पोस्टिंग बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में कैसे आ जाएगी? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बिल्स डिस्काउंटेड। ये ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं समझने के लिए लिख रहे हैं कि ये पोस्टिंग किस लिए आ रही है। एक्चुअल जब आप क्वेश्चंस करोगे तब लिखने की जरूरत नहीं है, देन इट इज ऑप्शनल। बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। If a bill is dishonored on maturity, bill which was retained and gets dishonored on maturity, then the entry is एक्सेप्टर टू बिल्स रिसीवेबल। yes, या हम कह सकते हैं डेटर टू बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स में ये आया था डेबिट साइड पे टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय टोटल डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्स डिसऑनर्ड। रिटन। When a bill is endorsed, then what is the entry? डॉर्सी टू डेटर। तो उसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा? बाय एंडोर्सी की जगह हम लिख देंगे टोटल क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स में से ही होगा जिसको हमने एंडोर्स किया होगा। बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्स एंडोर्स्ड। रिटन। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन की क्या एंट्री होती है? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में उसकी पोस्टिंग कैसे आ जाएगी? बाय बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टार डाल के। तो इसमें चार मेन चीजें कौन कौन सी हो गई? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, देन डेबिट साइड पर टू टोटल डेटर्स फॉर बिल्स रिसीव्ड, और क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट बिल्स कलेक्टेड। इन चारों में से कोई एक अमाउंट नहीं दिया होगा, दैट विल बी द मिसिंग फिगर। क्लियर? एक और लेजर का फॉर्मेट बना लो, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। और उसी के नीचे एक और लेजर का फॉर्मेट बना लो, बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल वाला 5 लाइंस में ही हो जाएगा।
टोटल क्रेडिटर्स में डेबिट साइड पर अगर हमने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे कर दिया है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? So creditor debit to bank or cash account. यस, तो डेबिट साइड पर स्टार डाल के लिखो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में अमाउंट पेड। Written. If a creditor has given us a discount, the entry is Creditor debit to discount received account. वेरी गुड। तो इसलिए डेबिट साइड पर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। Written. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है हमने किसी क्रेडिटर का ड्रॉ किया हुआ, देन द एंट्री विल बी Creditor debit to bills payable account. यस। तो नेक्स्ट लिखो टू बिल्स पेबल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स एक्सेप्टेड। Written. व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न? Creditor debit to purchase returns account. Yes. So next one is to purchase returns account. Written. If we have endorsed a bill to a creditor, then the entry is Endorse your creditor debit to bills receivable. yes. तो उसके लिए पोस्टिंग आ जाएगी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स एंडोर्स्ड। Written. इसमें हमने डेबिट साइड पे शुरुआत बैलेंस ब्रॉट डाउन से क्यों नहीं की? So because creditors have a credit balance. वेरी गुड, यस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे होता है, डेबिट साइड पे बैलेंस कैरिड डाउन होगा। लास्ट में स्टार डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन। Written. Now moving to the credit side, first item will be by balance brought down with a star. Written. Next will be by purchases account ब्रैकेट में credit purchases स्टार डाल के। Written. जो बिल पेबल था और ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर क्या होती है? The bills payable account debit to the drawer or the creditor. एंड नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होते हैं, है ना? Yes, sir. तो उसकी पोस्टिंग के लिए नेक्स्ट टू आइटम्स लिखो बाय बिल्स पेबल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स डिसऑनर्ड और उसके बाद बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट। Written. And if an endorsed bill is dishonored, then what is the entry? In the books of drawer. The accepted debit to endorsee. Yes, and endorsee is creditor, one of the creditors. तो total debtors में हमने लिखा था टू टोटल क्रेडिटर्स, है ना? endorsed bills dishonored, उसी की पोस्टिंग क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगी? बाय टोटल डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में endorsed bills dishonored। Written. Now coming to bills payable account, first item on debit side with a star टू बैंक अकाउंट बिल्स डिस्चार्ज, जिन बिल्स पेबल की मैच्योरिटी पे हमने पेमेंट कर दी
तो बिल पेबल टू बैंक, इसलिए टू बैंक अकाउंट. Written. If a bill payable is dishonored, then Bills payable account debit to the creditor. yes. तो यहाँ पे हमने किया था ना टोटल क्रेडिटर्स में बाय बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में आ जाएगा टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्स डिसऑनर्ड. Written. Then with a star, to balance carried down. Written. On credit side, buy balance brought down with a star. Written. And then with a star, buy total creditors account, ब्रैकेट में बिल्स एक्सेप्टेड. यहाँ पे हमने टोटल क्रेडिटर्स में लिखा था टू बिल्स पेबल, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग यहाँ पर है बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स एक्सेप्टेड. Done. नीचे स्टार डाल के नोट लिख लो, वन ऑफ दीज मे बी मिसिंग, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर इन ईच अकाउंट. Is this screen visible? Yes, sir. ओके. ये क्वेश्चन लिख लो पहले आप, और लेट मी शो इट इन दी अदर स्क्रीन. जस्ट अ सेक. इसमें से लिख लो, जसप्रीत स्टोर डज नॉट मेंटेन, ये वाला क्वेश्चन लिख लो पूरा. Last line is cash sales are 20% of credit sales. Find out total sales. ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप फॉर्मेट बना लेना, एक टोटल डेटर्स अकाउंट, एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है, 10 लाइन्स ईच. And in the next class, then we will attempt this question. Sir, only two accounts are to be made. Yes, only two in this one. Bills receivable, debtors account, total debtors account and bills receivable account. ठीक है, इनके फॉर्मेट बना लेना आप, 10 लाइन्स ईच. नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन नोट कर लिया पूरा? Yes, sir. Okay, so we'll stop over here for today. Any doubts, anyone? No? Okay, thank you.